Hello students, good morning. I'm Monica here and today we will discuss about exercise 9.2 class 11 sequence and series. In this exercise we learn about arithmetic progression. Arithmetic progression के बारे में हम class 10th में already पढ़ चुके हैं. Now we can see arithmetic progression क्या होता है. What is arithmetic progression? Arithmetic progression is a sequence. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है, ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड द प्रीसीडिंग वन is always constant, means and the preceding one is always constant. It means an AP is a sequence in which the difference between two consecutive terms is always same. The constant difference is known as common difference. The constant difference is known as common difference and it is denoted by D. In other words, we can say that if an AP A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, and in this AP we have A is first term and An is the general term of this AP. Then how can we calculate the general term of an AP? जनरल टर्म को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इसके लिए हम देखेंगे. Then we have an AP A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. हमारे पास एक AP है, कौन सी A plus D, A plus 2D. हमने लाइट क्या की है, एक AP है हमारे पास. हमें क्या करना है, इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, इसकी जनरल टर्म निकालनी है. तो कैसे करेंगे. Here the first term of an AP is A. फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास A है एंड द कॉमन डिफरेंस इज D. कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास D है. तो हम क्या देखते हैं कि इन द फर्स्ट टर्म वी हैव ओनली A एंड A1 इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट A1 एज A एंड ऑल्सो A प्लस 1 minus 1 into D. This is the first term because 1 minus 1 is equals to 0 and first term is equals to A. Now what is second term? Second term is A plus D and we can write it as A plus 2 minus 1 into D. Now third term is A plus 2D and A plus 2D is write as A plus 3 minus 1 into D. In all these steps we see that 1 minus 1, 2 minus 1, 3 minus 1. Here if we have the first term में हम क्या करते हैं, first term minus 1 into D, then 1 minus 1 into D is equals to 0 and in second term we have A plus 2 minus 1 into D. In every term we have a number less than 1 from its term. अगर ये थर्ड टर्म है हमारी तो क्या है, इसमें जो हमारी D के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा 1 लेस देन दिस. तो यहां से हम क्या देखेंगे कि जो हमारी nth टर्म होगी An, we can write it as An is equals to A plus, कौन सी टर्म है हमारी n, तो we can write it as n minus 1 into D. This is the general term of an AP. Now if we have an AP 3, 7, 11, 15, 19 and so on. Now here the first term is 3 and the common difference D is 7 minus
3. The common difference is 4. The general term. Then what is the general term of this AP? The general term of this AP is equals to AN is equals to A plus N minus 1 into D. Here we substitute the value of A and D. A is equals to 3 plus N minus 1 into D is equals to 4. Now the general term of this AP is equals to 3 plus 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4n minus 4. Then it is 3 और ये -4 4n minus 1. Now an is equals to 4n minus 1. This is the general term of this AP. Now next is if we have calculate the an means general term, and general term, the term which we have calculate in this AP, we can discuss about 20th term. What is the 20th term? Now A plus 20 minus 1 into D. This is the 20th term, means A plus 19D. A plus 19D is the 20th term of this AP. Now here A is equals to 3 and D is equals to 4. Now 19th term क्या होगी? 3 plus 19 into 4. 76 plus 3 77. The 20th term from beginning is 77. अगर हम बात करें कि टर्म फ्रॉम एंड से हमारी कौन सी टर्म, देन वी कैन कैलकुलेट द टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड द टर्म फ्रॉम एंड. हियर वी कैलकुलेट द टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड द टर्म इज A20. हमने क्या किया? 20th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग. जब भी हम बिगिनिंग से कोई टर्म निकालते हैं तो वो हमारी चाहे फाइनाइट एपी हो या इनफाइनाइट एपी, हम दोनों एपीज में बिगिनिंग से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. लेकिन हमें एंड से कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एपी को एक फाइनाइट एपी बनाना पड़ेगा. उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं? एंड से कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर ये एपी इनफाइनाइट रही तो हमें नहीं पता कि ये एपी का एंड कहाँ होगा. Then we cannot calculate the term from the end. Then what is the formula for calculating the mth term from the end? This is, हमें क्या करना है? इस AP में nth term निकालनी है. तो nth term हमने बता दी. अब अगर हमें एक AP गिवन है, उसमें हम क्या करेंगे? लास्ट से कोई टर्म पूछता है, लास्ट टर्म फ्रॉम, जैसे 20th टर्म फ्रॉम द एंड. अगर हमें पूछे कि एंड से 20th टर्म क्या होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि उस एपी की स्टार्टिंग से वो कौन सी टर्म होगी. जैसे हमारे पास मान लो एक एपी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 and 22. Here we can calculate the, in this AP we can calculate the 6th term from the beginning. हम क्या करेंगे? बिगिनिंग से 6 टर्म निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट A plus 5D. Here A is equals to 2 plus 5 into D is equals to 4 minus 2 is equals to 2. Then the 6th term from the beginning is 12. Now if we calculate any term from the end, अगर हमें एंड से कोई टर्म निकालनी है, मान लीजिए हमें बोला गया कि आप एंड से, आप निकालिए एंड से कौन सी टर्म? फोर्थ टर्म. एंड से क्या करिए? फोर्थ टर्म निकालनी है हमें. कहाँ से? फ्रॉम एंड. देन क्या करेंगे? जो एंड से हमारी फोर्थ टर्म होगी वो हमारी बिगिनिंग से कौन सी टर्म होगी? जो हमारी एंड से फोर्थ टर्म होगी वो हमारी बिगिनिंग से जो टर्म होगी, वो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n माइनस 4 प्लस 1. देन बिगिनिंग से कौन सी टर्म होगी? ये n माइनस 4 प्लस 1th टर्म होगी. मीन्स
बिगिनिंग से जो हमारे पास टोटल टर्म, इसमें फाइनाइट एपी में निकाल सकते हैं हम एंड से कोई टर्म, देन फाइनाइट एपी में जो हमारी टोटल टर्म्स होंगी. नाउ इन दिस एपी हियर द टोटल टर्म्स कितनी है, 11 है. देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 11. तो अगर हमें एंड से फोर्थ टर्म निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, 11 माइनस 4 प्लस 1 मीन्स स्टार्टिंग से कौन सी होगी वो 11 और 1 12 माइनस 4 8. हम स्टार्टिंग से एक टर्म निकाल सकते हैं. ऑल्सो एक मेथड और होगा इसको निकालने के लिए. जैसे हम क्या करें, हमें इस एपी के लिए ना एंड से कौन सी, एंड से फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड. नाउ हम क्या कर सकते हैं, इस एपी को अगेन बैक से राइट कर सकते हैं. 22 20 18 एंड 2. नाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. नाउ a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d. हेयर a इज इक्वल्स टू 22, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया, एपी को वापिस से करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया हमने. तो a क्या होगा, चेंज हो जाएगा. जो हमारी फर्स्ट में लास्ट टर्म थी वो क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी. एंड a इज इक्वल्स टू 22. हेयर a इज इक्वल्स टू 22 एंड d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे d क्या होगा हमारा, d इज इक्वल्स टू 20 माइनस 22. हेयर d इज इक्वल्स टू माइनस 2. नाउ a4 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 22 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस 2. 22 माइनस 6 क्या आएगी 16. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 16. तो हम क्या कह सकते हैं अब इसको कि जो हमारी एपी थी 2 4 6 8 10 अप टू 22, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल्स टू 16. अंडरस्टैंड. Now we can read about sum of n terms of an AP. Sum of n terms of an AP क्या होगा हमारे पास, हमें क्या करना है. अब तक हमने क्या पढ़ा, AP की फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, जनरल टर्म ऑफ एन AP. नाउ we have discussed about the sum of n terms of an AP. If we have an AP a plus d, a plus 2d and so on, then sum of n terms is denoted by Sn, and Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. क्या होगा हमारे पास Sn का फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1 into d. Here if we have given the last term, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम क्या कर सकते हैं, Sn is equals to n by 2 into a plus l. बोथ ऑफ दिस फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. नाउ we have discussed the question of exercise 9.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमें, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001. हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001. हमें क्या करना है, 1 से लेकर और 2001 तक सभी ऑड इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है. नाउ फ्रॉम 1 to 2001 वी कैन राइट ऑड इंटीजर्स एज 1 के बाद कौन सा आएगा ऑड इंटीजर, 3 5 7 एंड लास्ट ऑड इंटीजर कौन सा होगा 1 to 2001. लास्ट क्या आएगा हमारे पास 2001. हियर Sn इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था सम ऑफ एन AP. सम ऑफ एन AP क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू a प्लस l. इफ अगर हमें
लास्ट टर्म पता है तो क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अब हमें पता है a क्या है हमारे पास 1 है, l क्या है 2001 है। हमें किस चीज के बारे में अभी तक नहीं पता, n के बारे में, कि टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स है। अब हमने क्या पढ़ा था, nth टर्म या फिर जनरल टर्म ऑफ एनएपी। जनरल टर्म ऑफ एनएपी क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, n की वैल्यू, मीन्स हमें क्या पता है an इज इक्वल टू 2001। an की वैल्यू है हमारे पास 2001 एंड a इज इक्वल टू 1। नाउ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। नाउ d इज इक्वल टू 2। हियर 2001, इस 1 को इधर लेके आएंगे क्या होगा, -1 n माइनस 1 इंटू 2। यहाँ से 2001 माइनस 1 2000। नाउ हम 2 को इधर लेके आएंगे और क्या करेंगे 2000 से डिवाइड करेंगे। n माइनस 1 डिवाइड इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइड बाय 2। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1000। n माइनस 1 अगर 1000 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी 1001। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a, l, d एंड n। वी कैन कैलकुलेट द Sn। n की वैल्यू क्या है 1001। मीन्स हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है इसके अंदर, इस एपी में हमारे पास कितनी टर्म्स है 1001। देन n इज इक्वल्स टू 1001 डिवाइड बाय 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 प्लस लास्ट टर्म 2001 इज इक्वल्स टू 1001 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2002। दिस इज 2 से क्या कर सकते हैं हम कैंसिल कर सकते हैं 1001 इंटू 1001। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1001 को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट राइट कर दो 1001 का होल स्क्वायर। क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ all natural numbers lying between 100 and 1000। हमें क्या करना है सम फाइंड आउट करना है। all the natural numbers lying between 100 and 1000। 100 and 1000। Find the sum of all the natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiples of 5। हमें क्या करना है, आगे भी गिवन है क्वेश्चन कह रहा है which are multiple of 5। अब सबसे पहले हम 5 के मल्टीपल्स देखेंगे 100 and 1000 के बीच में। अब देखो एक हमारे पास होता है फ्रॉम, अगर हमें गिवन होता फ्रॉम 100 and 1000, 100 से और 1000 तक, तो हम क्या करते हैं 100 और 1000 को इंक्लूड करते हैं इसमें। लेकिन अब हमें क्या गिवन है लाइंग बिटवीन 100 and 1000, इसमें हम क्या करेंगे 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं करेंगे। देन 100 के बाद वो कौन सा नेचुरल नंबर आएगा जो 5 का मल्टीपल होगा। 5 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं जिनके लास्ट में 0 और 5 होता है। तो सबसे पहला 100 के बाद कौन सा आएगा 105। ये समझ में आया हमने 100 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें क्या गिवन है लाइंग बिटवीन 100 and 1000। नाउ फर्स्ट नंबर इज 105, 105, 1010, 115 एंड द लास्ट क्या होगा 1000 से पहले ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 5 का मल्टीपल होगा। दिस नंबर इज 995। These numbers are form an AP। नंबर्स क्या बनाते हैं एक AP। हमें क्या करना है AP का सम निकालना है। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें AP का A D फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, लेकिन हमें क्या नहीं पता N के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे N फाइंड आउट करेंगे। हमें AN का पता है, AN क्या है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। Here AN is equals to 995।
5 and a is equals to 105 plus n minus 1 into d is equals to 110 minus 105, d is equals to 5. देन 105 को इधर लेके आएंगे, क्या होगा, माइनस होगा तो कितना आएगा, 5 माइनस 5 0 9 और 8 890 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इज इक्वल्स इंटू 5. अब क्या करेंगे, n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे, 5 को क्या करेंगे, डिवाइड में लेके आएंगे. जब 5 को डिवाइड में लेके आएंगे तो कितना आएगा, 890 डिवाइड बाय 5. इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे. यार n माइनस 1 की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 5 1 जा 5 5 7 जा 35 5 8 जा 40 178. देन n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 179. अब हमें क्या है, n की वैल्यू भी पता है, a भी पता है, d भी पता है. उसके बाद क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे. SN क्या होता है हमारे पास, SN इज इक्वल्स टू n बाय 2 एंड a प्लस l. हमें लास्ट टर्म के बारे में पता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट a प्लस l यूज करेंगे. n क्या हमारे पास 179 डिवाइड बाय 2 इंटू a प्लस l. here a is equals to 105 and l is equals to 995. sorry, a plus l. here 179 डिवाइड बाय 2 इंटू कितना आएगा सम इनका 1000 एंड दिस 1100 को जब 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10 5 5 0. इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, राइट. कितना आएगा इनका मल्टीप्लाई, 98740. कितना आएगा इनका, 9874 एंड 0. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2. एक एपी है हमारे पास जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म. शो दैट 20th टर्म इज -112. थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक एपी का फर्स्ट टर्म गिवन है. फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 2. तो हम क्या कह सकते हैं, क्या गिवन है, a की वैल्यू a इज इक्वल्स टू 2 एंड ऑल्सो द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. जो हमारी जो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हम क्या मानते हैं एपी की, ऐसे ले लो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5. sum of first 5 terms is 1/4 of the sum of next 5 terms. next 5 terms कौन सी होंगी, a6 a7 a8 प्लस a9 प्लस a10. हमें ये गिवन है कि जो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है ना, ये जो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का 1/4 है. तो क्या करेंगे, क्या होगा, इस कंप्लीट का इनकम्प्लीट जो 5 टर्म्स है इनके सम का 1/4 क्या है फर्स्ट 5 टर्म्स. तो क्या हम ये कर सकते हैं कि या तो हम लास्ट 5 टर्म्स को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, और या फिर फर्स्ट 5 टर्म्स को क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर दें. अगर इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, फिर वापस दोनों इक्वल होंगे. नाउ क्या कर सकते हैं, अब हम वैल्यू रखो a1 a2 a3 a4 a5. इनकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होते हैं हमारे पास, a होती है. देन सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस डी. थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस 2d. फोर्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 3d. एंड फिफ्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 4d. फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए हमारे पास. अब इन फर्स्ट 5 टर्म्स का अगर हम a और d की टर्म में सम देखें तो क्या होगा, फर्स्ट 5 टर्म्स का इनका सम होगा, कितनी बार है a, 5 बार है a, तो 5a प्लस 1 3 6 एंड 10. क्या आएगा सम, 5a प्लस 10d. फर्स्ट 5 टर्म्स का सम कितना आया, 5a प्लस 10d. ऐसे क्या करेंगे,
लास्ट 5 टर्म्स का निकालेंगे तो a6 है वो क्या आएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d प्लस a प्लस 7d प्लस a प्लस 8d एंड a प्लस 9d। इनका टोटल सम हमारे पास कितना होगा बताओ। a कितनी बार है 5 बार, वापस से क्या आएगा 5a एंड d कितना है 18 26 एंड 35 कितना आएगा 5a प्लस 35d। अब इनके बारे में हम राइट करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या है हमारा 5a प्लस 10d। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म क्या है 1/4 है किसका सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स 5a प्लस 35d। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद चलो हमें क्या पता है फर्स्ट टर्म क्या हमारी a इज इक्वल्स टू 2 देन पुट द वैल्यू ऑफ a। अब 4 को क्या कर सकते हैं इधर लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करो 4 5 20 a प्लस 40 d इज इक्वल्स टू 5a प्लस 35d। यहाँ से a की वैल्यू रखो कितनी आएगी 20a 20 इंटू 2 40 प्लस 40d इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10 प्लस 35d। यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट करो। जब हम यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 40d माइनस 35d 5d इज इक्वल्स टू 10 माइनस 40 को इधर लेके जाएंगे 10 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस 30। हियर d इज इक्वल्स टू 5 6 इज 30 d इज इक्वल्स टू माइनस 6। हमें क्या मिल गई d की वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमें बताना क्या है शो दैट द 20th टर्म इज माइनस 112 कि 20th जो टर्म है ना वो माइनस 112 है। अब 20th टर्म के बारे में हमें बताना है 20th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे a20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। a20 क्या आएगा यहाँ से हमें d की वैल्यू क्या मिली थी d इज इक्वल्स टू माइनस 6 एंड a20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। a20 कैसे करेंगे a प्लस 20 माइनस 1 इंटू d। हियर a की वैल्यू 2 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू d इज इक्वल्स टू माइनस 6 कितना आएगा 2 प्लस माइनस का 114। हेयर 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस वैल्यू क्या आएगी 112। हमें यही शो दैट करना था कि a20 इज इक्वल्स टू माइनस 112। हमें ये बताना था कि a20 क्या है माइनस 112। समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 हम राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ मेनी टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी माइनस 6 माइनस 11 बाय 2 माइनस 5 एंड सो ऑन are needed to give the sum minus 25 minus 25। हमें ये बताना है कि हमें इस एपी की कितनी टर्म्स को यूज करेंगे कि हमारे पास सम कितना आएगा माइनस 25। हमारे पास क्या आना चाहिए सम आना चाहिए माइनस का 25। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें क्या है एपी गिवन है तो a की वैल्यू क्या है यहाँ से हेयर a इज इक्वल्स टू माइनस 6 एंड d इज इक्वल्स टू d क्या आएगा a2 माइनस a1 माइनस 11 बाई 2 माइनस 6। ये डबल माइनस क्यों क्योंकि ये माइनस की 6 तो क्या हमारी फर्स्ट टर्म है और बीच में हम क्या कर रहे हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देन a2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस 11 बाई 2 एंड माइनस माइनस क्या होगा माइनस 11 बाई 2 और प्लस 6 एलसीएम क्या 2 क्या आएगा माइनस 11 प्लस यहाँ पे क्या है 1 तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 12 मीन्स 1 बाय 2। डी की वैल्यू हमें क्या मिली 1 बाय 2।
अब हम क्या करेंगे, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ, हमने मान लिया कि n टर्म्स का सम क्या है हमारे पास, -25। हमारे पास -25 क्या है, n टर्म्स का सम। देन Sn इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, -25। हियर Sn को हम क्या कह सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। Sn की क्या है हमारे पास, -25 इज इक्वल्स टू n/2। हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू। देन n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, -6 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ -2 को क्या करेंगे, इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो। -50 इज इक्वल्स टू n इंटू 2 इंटू 6 -12, 2 इंटू -6 -12 प्लस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/2 एंड -1/2। अब क्या आएगा, -50 इज इक्वल्स टू, क्या कर सकते हैं यहाँ से आगे सोल्व करो। -50 इज इक्वल्स टू n इंटू -12 और -1/2 को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारे पास -12 और -1/2। सोल्व करो इसको। जब हम कंप्लीट का एलसीएम क्या करेंगे, 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -24 और -1 मीन्स -25/2। तो यहाँ से क्या है, -25/2 प्लस n/2। अब क्या करो, n को अंदर मल्टीप्लाई करो। -50 इज इक्वल्स टू माइनस का 25/2 n प्लस का n²/2। नाउ आगे हम क्या कर सकते हैं, इरेज करके इधर कर देते हैं। आगे हम क्या करेंगे, -50 इज इक्वल्स टू माइनस दिस एंड दिस, सबको क्या करो, -50 को इधर लेके जाओ, n²/2 माइनस 25/2 n और प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। हेयर 2 एलसीएम लेंगे, पहले 2 एलसीएम लेके क्या करेंगे, उधर जाके 2 0 हो जाएगा। कंप्लीट का एलसीएम क्या है, 2n² माइनस 25n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 0 हो जाएगा। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, n² माइनस 25n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 100 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है, -25। देन क्या कर सकते हैं, 20 और 5, 25 जा 100 एंड 20 एंड 5 25। n² माइनस 20n माइनस 5n माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। हियर n को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लो, n माइनस 20 माइनस 5 कॉमन लो, n सॉरी ये प्लस है, n प्लस 20 इज इक्वल्स टू n माइनस 20। अब क्या होगा, दोनों से क्या कॉमन आएगा, n माइनस 20। यहाँ से क्या बने, दो रूट्स हमारे पास, n माइनस 20 एंड n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 20 एंड n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की क्या वैल्यू आएगी, n इज इक्वल्स टू 20 और n इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास n की क्या वैल्यूज आई, दो वैल्यूज आई हमारे पास। n की क्या आई, n इज इक्वल्स टू 5 और n इज इक्वल्स टू 20। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q। एक एपी में pth टर्म हमारे पास क्या है, इन एन एपी इफ pth टर्म इज इक्वल्स टू 1/q। जो हमारी pth टर्म है ना वो क्या होगी, 1/q एंड द qth टर्म इज 1/p। qth टर्म क्या है हमारे पास, 1/p। नाउ प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस qth टर्म इज 1/2 pq प्लस
1। हमें क्या बताना है, हमें प्रूव करना है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। हमें सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स को प्रूव करना है। क्या होना चाहिए, 1/2 पी क्यू प्लस 1, 1/2 पी क्यू प्लस 1, ये होना चाहिए हमारा सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स वेयर पी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, पी एथ टर्म। हम पी एथ टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। पी एथ टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। हम ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी से क्या कर सकते हैं, पी एथ टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ से पी एथ टर्म बताओ क्या होगी, पी एथ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। एंड ऑल्सो क्यू एथ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए क्यू क्या होगी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब ये किसके इक्वल है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है, ये 1/q के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, 1/p के इक्वल है। तो इसको यहाँ राइट करो, किसके इक्वल है, ये 1/p के। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसको इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है कि ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/q। इसको यहाँ लिखो, इज इक्वल्स टू 1/q। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और ये मान दे सेकंड इक्वेशन है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, माइनस सब्ट्रैक्ट करो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। अब यहाँ से क्या आएगा, माइनस ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। हेयर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ए और माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। a से a कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ से क्या बचा, d हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम d कॉमन लेंगे तो p माइनस 1 और माइनस q माइनस 1, तो क्या करेंगे, q तो हो गया माइनस का और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस क्यू और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। यहाँ से क्या करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, हमारा d क्या आ गया, हमारा d इंटू हमारे पास आ गया d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। ये आ गया हमारे पास d इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की वैल्यू क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ इधर एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा, पी क्यू, तो यहाँ से क्या आएगा, इधर p माइनस क्यू, यहाँ से आ गया d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये हमारे पास d इंटू ये कर सकते हैं, d इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू, और ये भी इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में आएगा p माइनस क्यू। पी माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ गई, 1/pq। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, d की वैल्यू। d की वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हैं। d की वैल्यू क्या है हमारी, d की वैल्यू को इधर राइट करते हैं, d इज इक्वल्स टू 1/pq। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/q। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो सब्सटीट्यूट करो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q। यहाँ से क्या करेंगे, हम a की वैल्यू निकालें, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, a और d की वैल्यू आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं p प्लस पी क्यू टर्म्स का, फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का। तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा,
सॉरी 10 से एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करो, ए इज इक्वल्स टू 1/q माइनस कंप्लीट टर्म को इधर लेके जाओ, p माइनस 1 डिवाइड बाई पी क्यू। यहाँ से क्या करो, पी क्यू एलसीएम, यहाँ से पी क्यू एलसीएम आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, p और माइनस क्या है, p माइनस 1। जब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो p तो क्या होगा माइनस का, और ये 1 किसका होगा, प्लस का, p माइनस p कैंसिल। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 डिवाइड बाई पी क्यू। ए की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 1/pq। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का। अब हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इक्वल इंटू डी। Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से a और d की वैल्यू पुट करो। Sn हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट pq टर्म्स का, तो n की जगह क्या पुट करो, pq इज इक्वल्स टू pq बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1/pq, तो 2 इंटू 1/pq प्लस n क्या है, pq माइनस 1, d की वैल्यू 1/pq। यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट pq बाय 2 इन, क्या करो यहाँ से 1/pq, यहाँ से 1/pq कॉमन ले लो, यहाँ से 1/pq, यहाँ से अंदर क्या बचा 2, यहाँ से क्या बच गया प्लस pq माइनस 1, यहाँ से क्या हुआ pq से pq कैंसिल, क्या आएगा अब 1/2 इंटू pq 2 माइनस 1 तो pq माइनस 1। यहाँ से हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स क्या आया, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स क्या आया, सॉरी यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये प्लस का 1 है, तो सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स क्या है, pq प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और हमें यही प्रूव करना था। थैंक यू।